Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class we had started the third chapter, that is business environment, and we had done the definition of business environment होता क्या है उसका introduction पढ़ा था हमने, and we also have done the various characteristics of business environment. Now in this video we will be learning about why business environment is important, why studying, why analyzing business environment is important. Business environment को समझना, उसे analyze करना, उसे study करना क्यों important है, right? Now before starting this, let us first revise what we have done in our last videos. We have done about business environment, कि business environment होता क्या है. So what is business environment? Business environment are those factors and forces. ये वो factors and forces हैं which affect your business either directly or indirectly, positively or negatively, and these factors and forces are not under the control of a businessman. ये वो factors and forces हैं जो आपके business को affect करते हैं या तो directly या फिर indirectly, या तो positively या तो negatively, and इसका businessman में कोई control नहीं है. But what best a businessman can do, एक businessman क्या कर सकता है? The businessman can do environment scanning. He can properly analyze the business environment, the changes that are happening on day-to-day basis, and accordingly, जो भी changes हो रहे हैं उसके according, a businessman can bring change in his business. He can adopt that changing business environment. But if a businessman will not properly analyze the business environment, अगर एक businessman अपने environment को properly scan नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तो क्या होगा? His business will be thrown out of the market. उसके बिजनेस के लिए मार्केट में कोई भी जगह नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ही विल नॉट बी अपडेटेड. जब उसे पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या वो कभी भी अपने बिजनेस में चेंजेस करेगा? नहीं करेगा. एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, वो पीछे रह जाएगा एंड हिज बिजनेस विल बी शट डाउन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट. अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब करना है एंड जितने भी थ्रेट्स हैं उनको हमें फेस करना है, राइट? वी ऑल्सो हैव डन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स भी किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे. सो द फर्स्ट फीचर व्हाट वी हैव डन वाज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. ये जितने भी फोर्सेस, फैक्टर्स हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ के हैं? बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं. कुछ फोर्सेस तो स्पेसिफिक फोर्स होते हैं जो कि सिर्फ आप ही के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एंड कुछ फोर्सेस कौन से होते हैं? जनरल फोर्सेस, जो जनरली सभी के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. दिस ऑल्सो वी हैव डन. बार बार चेंज होता रहता है. इट डजंट रिमेन स्टैटिक, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है. बिजनेस एनवायरनमेंट is uncertain. We cannot predict कि क्या चेंज आ जाएगा, right? Business environment is complex in nature. Complex in nature meaning it is difficult to understand what will be the impact of the changing environment. हमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि जो चेंज हो रहा है उसका हमारे बिजनेस पे या किसी और के बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. The next feature was interrelation. Business environment interrelated है. अगर एक चेंज आता है तो उसका दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, पीपल हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो उससे क्या हुआ था? मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था. दैट एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर. सो दैट इज इंटररिलेशन. द सेम वे there was news, I had given this example also, that there was news about these black drinks. तो जैसे वो न्यूज आई पूरे सब जगह सर्कुलेट हो गई तो उससे क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा.
So that is interrelation. News का negative impact पड़ा. So that is interrelation, right? And the last feature we have done was relativity. Relativity means dependent, comparatively. हम ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट का सभी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नो, या सभी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नो. इट डिपेंड्स. किसी पे अगर पॉजिटिव पड़ रहा है तो किसी पे नेगेटिव भी पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी. सो दीज आर द पॉइंट्स which we have done in our last videos. Now, today we will start with importance of business environment. Now, as I had told you just now that it is very important for a businessman to scan his business environment. अपने business environment को समझना बहुत जरूरी है. We should be aware about the changes that are happening in our environment. बिकॉज अगर हमें अवेयर ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा क्या चेंज हो रहा है, तो क्या हम कभी भी अपने बिजनेस को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे. और हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा लोगों से. एंड मे बी वी हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. ओके, सो द फर्स्ट इज identify opportunities and getting first mover advantage. If you scan your business environment, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, you are aware of it, then you are able to identify the opportunities. जितनी भी opportunities है उन्हें identify कर पाओगे. Opportunities means favorable factors. Favorable factors which affect your business. ये वो positive factors हैं जो आपके business को affect करते हैं. तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ रहे हो, स्कैन कर रहे हो, यू आर अवेयर ऑफ इट, तो आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो, जिसका आपके बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? फेवरेबल, पॉजिटिव, राइट? एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. व्हाट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज? फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज टेकिंग इनिशिएटिव, पहला स्टेप लेना. स्टूडेंट्स जो भी सबसे पहले स्टेप लेते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ एडेड एडवांटेज जरूर मिलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज अ मैसेजिंग एप्लीकेशन एंड देयर आर वेरियस अदर एप्लीकेशंस आल्सो, जैसे हाइक आई थी, बीच में हाइक बहुत ज्यादा था. देन यू हैव दिस वीचैट, ऐसे स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे चैट मैसेजिंग के एप्स आए थे. बट व्हाट्सएप वॉज द वन, व्हाट्सएप वॉज द वन विच रूल्ड द एंटायर मार्केट. सब जगह व्हाट्सएप जितना फेमस कोई नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज व्हाट्सएप ऐसी पहली एप्लीकेशन थी जिसने ऐसा कुछ मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया. मैसेजिंग ऐप तो पहले भी बहुत थे, पर ऐसे नए कंसेप्ट में जहां पे लोग रेगुलरली लाइक वेरी इजीली मैसेज कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ऐसा पहली बार हुआ था. सो व्हाट्सएप ने सबसे पहले स्टेप लिया, पहला ऐसा लॉन्च किया. स्टूडेंट्स माइंडेड है, पहले भी और एप्स थे जहां आप मैसेजिंग कर सकते थे, पर व्हाट्सएप जो इनोवेशन लेके आया, जो उसने पहला स्टेप लिया, ऐसा किसी ने नहीं लिया. तो आज भी हम क्या बोलेंगे? व्हाट्सएप इज नंबर 1 मैसेजिंग एप्लीकेशन, राइट? तो जो पहला स्टेप लेते हैं उसे हमेशा कुछ ना कुछ एडेड एडवांटेज जरूर मिलता है. तो ये व्हाट्सएप कैसे कर पाया? व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि व्हाट्सएप ने जरूर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनालाइज किया होगा, समझा होगा, एंड फिर उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, अभी ऐसी कोई चैट एप्लीकेशन नहीं है जिससे हम आराम से मैसेजिंग कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप ने सोचा कि हम अब ऐसा चैट एप्लीकेशन, मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिससे एवरीबडी कैन इजीली मैसेज टू ईच अदर, राइट? तो उन्होंने क्या करा? अपॉर्चुनिटी को समझा कि हाँ, मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अभी ऐसा कोई चैट एप्लीकेशन नहीं है, सो वी शुड स्टार्ट दिस मैसेज एप्लीकेशन
जहाँ पे आप आराम से मैसेजिंग कर सकते हो, फोटोज एंड सब शेयर कर सकते हो। एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ लॉन्च किया था। पहले भी ऐसे एप्लीकेशन थे बट ऐसा इनोवेटिव पहली बार लॉन्च हुआ था, तो उन्हें जरूर एडवांटेज हो। तो ये सब कैसे कर पाए? ऐसे अपॉर्चुनिटीज उन्हें कैसे समझ में आई? कैसे समझ में आई? उन्होंने प्रॉपरली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उन्होंने आसपास देखा कि यस ऐसा कोई चैट एप्लीकेशन नहीं है, तो वी शुड लॉन्च इट, राइट? तो उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इन सबसे रिलेटेड केस स्टडीज भी आती हैं, राइट? सो प्लीज बी वेरी केयरफुल while understanding it, right? Now, coming to the second importance. Identify threats and early warning signal. If you analyze your business environment, then you are able to identify threats also. आपको अपॉर्चुनिटी तो समझ में आ रही है, पर आपको थ्रेट्स भी समझ में आएंगे। थ्रेट्स क्या होता है? थ्रेट्स आर अनफेवरेबल फैक्टर्स। Unfavorable factors which affect your business negatively. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, राइट? तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर स्कैन करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट भी समझ में आते हैं कि ये सब अनफेवरेबल फैक्टर है जो कि मेरे बिजनेस को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड यू विल गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल। You will get early warning signal. आपको पहले से ही वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, आपको पहले से ही एक अलर्ट का सिग्नल मिल जाएगा कि देखो अब अलर्ट हो जाओ, यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर बिजनेस, वरना आपके बिजनेस को मार्केट में कोई नहीं पूछेगा, राइट? अब ये कैसे सब समझ में आता है? वही, इफ यू आर अवेयर अबाउट योर बिजनेस एनवायरनमेंट, तभी आपको थ्रेट समझ में आएंगे, सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी समझ में आएंगे और आपको पहले से ही सिग्नल मिल जाएगा कि नाउ इट्स द टाइम टू मेक चेंजेस इन योर बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल आई गिवन यू अर्लियर ऑल्सो ऑफ नोकिया। नोकिया ने ये चीज समझी नहीं, नोकिया ने ये जो चेंजेस आ रहे थे उसे समझा नहीं, तो क्या हुआ? नोकिया was actually shut down, या आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया मार्केट से तो बाहर ही हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उन्होंने एंड्रॉइड नहीं, वो सिर्फ विंडोज फोन बना रहे थे, जबकि एंड्रॉइड आ गया था। दे वर मेकिंग दोज डायल पैड फोन्स जो कि एकदम आउट ऑफ फैशन हो गए थे। अब क्या आ गया था? टच स्क्रीन आ गया था, राइट? तो उन्होंने इस थ्रेट को समझा नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं एंड वी हैव टू अडॉप्ट इट, तो उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, उन्होंने सिग्नल को नहीं समझा। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? दैट एवरीबडी नोज इट, नोकिया वाज एक्चुअली आउट ऑफ द इंडियन मार्केट, राइट? सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? वी हैव डन दीज टू रीजंस कि अपॉर्चुनिटी समझ में आती है और आपको थ्रेट समझ में आते हैं, राइट? Now coming to the third importance, assist in planning and policy making. आपको अगर अपॉर्चुनिटी समझ में आ रहे हैं, ये मौके हैं आपके पास, चांसेस हैं, आपको थ्रेट समझ में आ रहे हैं जिससे आपको दूर रहना है, फेस करना है, अपने बिजनेस में चेंजेस लाना है, सो ऑब्वियसली आप क्या कर पाओगे? अपने बिजनेस की प्लानिंग में चेंजेस कर पाओगे और पॉलिसीज में भी आप चेंज कर पाओगे। और जब तक आप एनवायरनमेंट को समझोगे नहीं, क्या होगा? यू विल स्टिक टू दैट सेम प्लान, जो आपने प्लान बनाया था उसी पे आप टिके रहोगे, कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं करोगे। बट अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझते हो, सो इट हेल्प्स यू टू मेक a successful plan, आप एक सक्सेसफुल प्लान बना पाओगे एंड पॉलिसी बना पाओगे, राइट? कमिंग टू द फोर्थ वन, it helps in adapt to changes.
This students we actually have done here like in these 3 points only, but ये अलग से point है, this also will be doing it, पर हम ये पहले ही कर चुके हैं. बिजनेस एनवायरमेंट को आप स्कैन करते हो तो क्या कर पाते हो, आपको चेंजेस समझ में आ जाते हैं एंड यू आर एबल टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस. आप उन्हें आराम से अडॉप्ट कर लेते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस जियो. ये जो जियो जब आया था, ये ऐसी इंटरनेट स्कीम्स लेके आया, इंटरनेट पैक्स लेके आया दैट एवरीबडी लाइक मोस्ट ऑफ देम दे स्विच टू जियो फॉर इंटरनेट. If I talk about myself, I was also using some another mobile connection, but for internet, I also switched to Jio. Right? And this happened with most of us. Why? Because they had got some revolution. They had made internet reasonable prices पे available कराया for all of us. Right? So the other companies like you have Airtel, Vodafone and other companies, उन्हें ये थ्रेट समझ में आया क्या कि अगर ऐसे ही हुआ so we will lose all our customers and for internet everybody will like most of them will switch to Jio. So they also made changes in their plan. उन्होंने अपनी schemes change करी, उन्होंने new schemes लेके आए. Right? And they adapt to the changes. And how they were able to adapt to the changes? Because they were aware of the changing business environment. उन्हें समझ में आ रहा था अगर हम changes नहीं करेंगे, so Jio will take all their market share in internet. So they were able to adapt to the changes. Coming to the 5th one, it helps in tapping resources. अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो, स्कैन करते हो, तो आप वो रिसोर्सेज टैप कर पाते हो. टैप मीन्स कलेक्ट कर पाते हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी डिमांड है. सपोज आई एम अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मेरी एक कंपनी है, टीवी मैन्युफैक्चर करती है. And my company doesn't remain so much aware about the changing environment. ये जो environment change हो रहा है उससे aware इतनी नहीं रहती है. Right? तो क्या होगा, मैं कौन सी टीवी मैन्युफैक्चर करूंगी, मेरी कंपनी कौन सी टीवी मैन्युफैक्चर करेगी, मे बी LED और उससे पहले कौन सी टीवीज आती थी वो ही मैन्युफैक्चर करती रहेंगी. क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या चेंज आ रहा है. तो मैं रिसोर्सेज कौन से कलेक्ट करूंगी, जो पहले डिमांड में थे उन्हीं टीवी के रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगी, रॉ मटेरियल कलेक्ट करूंगी. पर अगर इफ आई वुड हैव बीन अपडेटेड अबाउट द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जो चेंज हो रहा है, अगर मैं अपडेटेड होती तो क्या होता, मुझे पता होता कि अभी आजकल कौन से टीवी की डिमांड है, मुझे कौन सा टीवी मैन्युफैक्चर करना चाहिए एंड कौन से रिसोर्सेज कलेक्ट करने चाहिए. और ये सब कैसे पता चलता, अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सब पता होता कि क्या चेंज आ रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्कैन, अंडरस्टैंड योर बिजनेस एनवायरनमेंट. जब तक आप समझोगे नहीं, आपको डिमांड नहीं पता चलेगी कि क्या चल रहा है आजकल. अगर डिमांड पता चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाओगे. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द लास्ट 6th one, improvement in performance. Now students, if you scan your business environment, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझते हो तो क्या हो रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सारे फेवरेबल फैक्टर्स आपके बिजनेस पे होंगे. Second is you are able to identify threats also. आप ऐसी plans and policies बनाओगे जिससे आप threats को face कर पाओ. Right? Correct plans बना पाओगे, correct policies बना पाओगे. जो भी changes आ रहे हैं उन्हें adapt कर पाओगे. And जब डिमांड पता चल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे. तो जब आप इतना अच्छा सब करोगे, so obviously
your performance will improve. Right? So these are the benefits, or you can say importance of business environment. Right? Now students, we'll just revise it once. Business environment, अगर आप scan करते हो, if you are aware of it, then it has various benefits and इसकी बहुत importance है. उसका क्या importance है? The first one is आपको सारे favorable factors पता चलेंगे, opportunities पता चलेंगी, so that you can grab it and use it in your business. And you will be able to take first mover advantage. आप पहला step लोगे, कुछ नया innovative करोगे, तो obviously you will get an added advantage. Identify threats. जब आप business environment को समझोगे, तो आपको सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी पता चलेंगे जो कि आपके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और आपको पहले से वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा. तो क्या होगा? आप ऐसे स्टेप्स करोगे, सो दैट ऐसे डिसीजंस लोगे, सो दैट यू आर एबल टू फेस दीज थ्रेट्स. राइट? प्रॉपर स्कैनिंग से प्रॉपर प्लानिंग बनेगी, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर पॉलिसीज बनेगी, and it will be beneficial for your business. If you know what changes are happening in your business environment, then you are able to adapt to the changes also. उन changes को adapt कर पाओगे. अगर आप business environment को scan करते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप वही resources collect करोगे जिनकी demand है. आप उन resources को collect करके नहीं बैठ जाओगे जिनकी कोई demand ही नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड ही नहीं है. राइट? सो यू हैव टू बी अपडेटेड. अगर डिमांड पता करना है, अगर आपको कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स पता करनी है, सो यू हैव टू बी अपडेटेड. आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की डिमांड है, और वो डिमांड कैसे पता चलेगी? जब आपको आसपास का सब पता हो, आपको एनवायरमेंट पता हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. अगर ये सब करोगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स इफ यू फॉलो, देन ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस विल इम्प्रूव, नो डाउट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. नाउ वी विल बी डूइंग सर्टेन केस स्टडीज. राइट? द फर्स्ट केस स्टडी इज ABC Limited, a book publishing house, published books on various subjects based on CCE pattern before any other publishing house could print it. What advantages will this publishing house get? Now this is actually a publishing house जो कि book publish करता है, ABC Limited. ABC Limited. इन्होंने CCE पैटर्न, जब आप क्लास 10th में थे तो उस टाइम CCE पैटर्न चल रहा था. राइट? तो उन्होंने बुक्स पब्लिश करी अकॉर्डिंग टू CCE पैटर्न, जब कोई और पब्लिशिंग हाउस CCE पैटर्न पे उन्होंने बुक्स पब्लिश नहीं करी थी. इन्होंने सबसे पहले बुक्स पब्लिश करी. राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट एडवांटेज विल दिस पब्लिशिंग हाउस विल गेट? ये जो पब्लिशिंग हाउस है, इसको क्या एडवांटेज मिलेगा? सो आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर दैट दिस पब्लिशिंग हाउस विल गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिकॉज इन केस स्टडी इटसेल्फ इट इज मेंशन कि इसने सबसे पहले, ये जो पब्लिशिंग हाउस है, इन्होंने सबसे पहले बुक्स पब्लिश करी जब दूसरे पब्लिशिंग हाउस ने बुक्स पब्लिश नहीं करी थी. सो ऑब्वियसली व्हाट दे विल गेट? They have identified the opportunities and they will get first mover advantage. So answer is the first one. Right. Next case study is, with the introduction of mineral water bottle in India, Bisleri was able to capture the big market share in India. With the introduction of, जब इंडिया में मिनरल वाटर की बॉटल्स आई, लॉन्च हुई, तब बिस्लेरी ने पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया. सो व्हाट विल बी द आंसर? द क्वेश्चन इज एक्चुअली which importance of business environment is highlighted here.
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड हियर. कौन सी इंपॉर्टेंस होगी? आई थिंक दिस इज क्लियर. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. क्यों? क्योंकि बिस्लेरी ने पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया. जब इंडिया में मिनरल वाटर की बॉटल्स लॉन्च करी गई थी तब बिस्लेरी ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया. So the answer will be the same. Identify opportunities and getting the first mover advantage. Now students, we will be doing the another case study. The case study is, it may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors on change in demand of a product in the market. इस लाइन का ये मतलब है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर जो लीगल फैक्टर्स हैं इनका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है. एंड यू हैव टू टेल द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इफ यू रिमेंबर फीचर्स वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो. तो कौन सा फीचर हो जाएगा? इसमें क्या लिखा है? ये समझना मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू नो. समझना मुश्किल है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा. तो कौन सा फीचर हो जाएगा? द फीचर इज कॉम्प्लेक्स. बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो द आंसर इज कॉम्प्लेक्स. राइट. द नेक्स्ट केस स्टडी इज यूनिक लिमिटेड is an electronic goods manufacturing company situated in Uttar Pradesh. It is earning low revenue in comparison to another electronic company, Pace Limited, situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors, customers, competitors and suppliers in their respective locations. At the same time, both are affected by economic condition and change in technology, etc. You have to tell the feature of business environment. Student, question ये है कि यूनिक लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यूपी में लोकेटेड है. इसका रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अनदर कंपनी इज वेरी लो. एंड वो अनदर कंपनी कौन सी है? पेस लिमिटेड, जो कि दिल्ली में है. दोनों ही कंपनी इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स को फेस करती है. एंड दोनों ही कंपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी फेस करती है और जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी फेस करते हैं. नाउ यू हैव टू टेल द फीचर्स. सो द फीचर इज, देयर आर टू फीचर्स. सो द फर्स्ट फीचर इज स्पेसिफिक फोर्स. स्पेसिफिक फोर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दोनों कंपनीज पे इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक फोर्स. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक फोर्स है. ये पर्टिकुलर फोर्स है जो सिर्फ उनके बिजनेस को अफेक्ट करता है. सो आंसर इज स्पेसिफिक फोर्स. देयर इज अनदर फोर्स ऑल्सो, दैट इज जनरल फोर्स. जनरल फोर्स क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है वो दोनों के बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. तो टेक्नोलॉजी चेंज होना या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होना ये तो बिजनेस के बाहर होता है. राइट. एंड ये सभी को अफेक्ट करता है. इन जनरल सभी पे इफेक्ट आता है. सो द आंसर इज जनरल फोर्स. एंड स्पेसिफिक फोर्स क्यों? क्योंकि कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स ये सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. So that is why the answer is specific force. I hope these three case studies are clear. And in our next video, we will be doing dimensions of business environment. Right? Thank you.